very good morning to all of you, dear students. So, yesterday we started sequence and series of this your M2 topic, M2 mathematics. So, now we will go ahead in sequence and series. So, before going ahead, I'm going to just recap what we did other day. Correct? We came to know GP where the Tn of a GP is a into r to the power n minus 1, where a is first term, fine, a is first term, and r is common ratio. This is common ratio. So Tn we came to know a into r to the power n minus 1. Then we came to know that regarding that r part, r never be 1 and never be 0, correct? And rest anything can be r. So r common ratio never be 1 and never be 0. r कभी भी 1 के इक्वल और 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है? Then we did the conjugative terms of a GP. Three conjugative terms, three conjugative terms, conjugative terms of a GP, of a GP. Those are a by r, a, and ar. Then we came to know four conjugative terms of a GP, which is a by r cube, a by r, ar, and ar cube. And finally, we have five conjugative terms, which is a by r square, a by r square, a by r, ar, and ar square. Correct? These are conjugative terms of a GP. So that you have to remember because coming problems are based on these concept. So आपको ये remember रखना है. A by R, A, AR, three conjugative terms या three terms of a GP you can say. अगर मैं ये बोलूँ कि A AR square, AR cube, तो डेयर ये अप टू जो AR n-1 तक गई थी, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये nth टर्म है. बट ये जो टर्म है ये क्या है, ये कहीं के भी तीन टर्म हो सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी जीपी के अंदर ये चार टर्म हो सकते हैं कंजुगेटिव, लेकिन और ये कहीं के भी पांच टर्म हो सकते हैं. दिस वन, ठीक है? ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर. करेक्ट? ये कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी हमने देखा था. इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, एम जी एम और हार्मोनिक मीन. करेक्ट? तो इतना हमें जीपी के अंदर हमने अदर डे वी केम टू नो. Geometric progression, already we told you, second term upon first, correct, is equals to third term upon second term. This way it goes. और ये कॉमन रेशियो है जिसको आप आर भी कहते हैं, ठीक है? So till here, yesterday we came to know all these facts about geometric progression, ठीक है? Because we are drilling in sequence and series geometric progression now, ठीक है? Geometric progression ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी बातें geometric progression की थी, ठीक है? अब हम आते हैं डियर some more problems based on this geometric progression, ठीक है? So we'll start with couple of problems of a geometric progression. See, I am taking question in your textbook only. This is question number 7 of your exercise. I believe this exercise what we were doing, exercise 2.1. Exercise it is 2.1 in from your textbook, M2 textbook. 7th question number. Question D, we have find the numbers in GP such that sum of the middle two terms
two terms is 10 by 3 and their product is 1 and their product is 1. Find four numbers it is. इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं क्वेश्चन को. यहाँ पे फाइंड 4 numbers लिखा है. ठीक है, दिस इज फाइंड 4 numbers in GP such that sum of the middle two terms is 10 by 3 and their product is 1. Fine. So now we'll see the solution, how we'll proceed for this. So all of you aware, four numbers of GP क्या लेते हैं? Let कंजुगेटिव लेते हैं. Let the 4 numbers of GP are, क्या क्या लेंगे आप? A upon R cube, A upon R, करेक्ट, AR and AR cube. ये हमारे 4 numbers हो गए GP के कंजुगेटिव टर्म्स. वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट दिस. अभी हमने दिखाया आपको A by R cube, A by R, AR and AR cube. ठीक है, so this is just 4 consecutive terms of a GP. ठीक है dear, look at this. Now according to question what is given. अब हम इसके according to question में आते हैं. According to question what is given? 4 terms of the sum of the middle two terms is 10 by 3. तो sum of two middle terms क्या दिया हुआ है? A by R प्लस AR, इसकी वैल्यू दी हुई है 10 by 3 and their product is 1. यानी all 4 का प्रोडक्ट क्या है? 1 दिया हुआ है. दैट इज A by R cube into A by R into AR into AR cube is equals to 1. It is given. ठीक है, ये दी हुई है. तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा डियर? इस एक्सप्रेशन से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को a to the power 4 equals to 1. Therefore a we will get 1. ठीक है, a क्या मिल जाएगा अपने को? 1 मिल जाएगा. ठीक है, वंस a is 1 तो अब हम आते हैं डियर इस इक्वेशन में सेकंड वाले इंफॉर्मेशन में. ये सेकंड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कर लो, इसको आप सेकंड कर दो. फ्रॉम 2 से हमें a1 मिल गया तो फ्रॉम 1 में आते हैं. सो लुक एट दिस. फ्रॉम 1 a की वैल्यू 1 डाल दे तो 1 by R प्लस R इक्वल्स टू 10 by 3. अब यहाँ से हम R कैलकुलेट कर लें. सो गो विथ एलसीएम एंड ऑल. R स्क्वायर प्लस 1 by R इक्वल्स टू 10 by 3. सिंप्लीफाई कर लीजिए. 3R स्क्वायर माइनस 10R, ठीक है, एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब इसका आप फैक्टर निकाल लीजिए. फैक्टर्स में माइनस 9R और 3R होगा तो इसको कॉमन लेके आप फाइनली डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट? R माइनस 3 इंटू 3R माइनस 1 इक्वल्स टू 0. मैंने फैक्टर निकाल लिया, वो आप भी फैक्टर निकाल सकते हैं. सो वी हैव R इक्वल्स टू 3 एंड 1 by 3. सो ये हमारा R आ गया डियर. A already we have calculated which is 1. तो अब हम 4 numbers of GP लिख सकते हैं. So those 4 numbers are, कैसे हो जाएगा? फर्स्ट R3 लीजिए. when R is 3 and A is 1. ठीक है, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? देखो, A upon R क्यू यानी 1 upon 27, फिर A upon R which is 1 by 3, फिर AR which is 3 and then AR cube which is 27. तो ये 4 हो गए नंबर. एंड when R equals to 1 by 3 लेंगे and A equals to 1, so नंबर्स क्या आ जाएंगे? जस्ट इसको फ्लिप कर दीजिए. 27, 3, 1 by 3 and 1 by 27. So these are numbers.
ठीक है, जब आर आप 1/3 ले रहे हो तो नंबर्स हमारे क्या आ गए, 27, 3, 1/3 एंड 1/27। तो ये हमारे अनदर ऑप्शन आंसर हो गया। तो ये बोथ आर आंसर्स, इसको यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Find four numbers in GP such that their sum of the middle two terms is 10/3 and their product is 1. So we took four numbers of a GP, which is A by RQ, A by R, AR and ARQ. According to question, what is given? Sum of middle two terms is 10, correct? So A by R plus AR is given here, which is 10/3 and product इसका पूरे का product क्या है, 1 है। तो इसको product करने से A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, and then we substituted in equation 1, so this came 1 by R plus R equals to 10/3। यहाँ से हमने R कैलकुलेट किया which came 3 and 1/3। ठीक है, और फिर हमने नंबर्स बना दिए। जब R 3 होगी और A 1 होगा तो हमारे GP के ये नंबर्स आएंगे, और when R 1/3 और A 1 है तो GP के नंबर्स ये आ जाएंगे। ठीक है, so these are answers, 1/27, 1/3, 3/27, or you can say 27, 3, 1/3 और 1/27। फाइंड हियर। सो इस तरह के सम आपको अच्छे से आने चाहिए, बड़े क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंजुगेटिव टर्म का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, करेक्ट। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं डियर। लुक एट दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम। इट इज क्वेश्चन नंबर 8 here. Find 5 numbers in GP. Now this time we have find 5 numbers in GP such that their product is such that their product is 1024, 1024, and fifth term is square of the third term, square of the third term, correct? This is the question. Find 5 numbers of GP such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term। ठीक है, so we'll start solving this। तो आपको फिर से वो 5 numbers of GP आपको याद ही है। So let 5 numbers of GP are, what are those? All of you remember, A by R square, A by R, AR, in fact A आएगा यहाँ पे, A, this is A, then AR and AR square। These are 5 numbers of a GP, correct? Now we'll have to see the according to question। First is their product is given 1024, so according to question their product means A by R square into A by R into A into AR into AR square. This is given 1024. Fine. Now, so what is going to be A here? This is going to be A to the power 5 equals to 1024। और आपको पता है डियर ये कितनी हो जाएगी, ये 4 का होल 5 होगा 1024। तो यहाँ से अपने को A मिल जाएगा 4, करेक्ट। A इज A इक्वल्स टू 4, A 4 हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दी हुई थी,
fifth term is square of the fifth term is square of the third term. So fifth term is square of the third term. That means also what we have, fifth term is square of the third term. तो फिफ्थ टर्म आपके पास डियर क्या है, इसको देख लें. फिफ्थ टर्म इज सो AR square is स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म. थर्ड टर्म ए है तो इसका स्क्वायर है ये. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जाएगा. ए अपने पास 4 है. फाइन. तो आर कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2. आर की 2 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 2. ठीक है. तो अब हमें आर कंफर्म हो गई विच इज प्लस माइनस 2 और ए हमारा 4 आ गया. तो नाउ वी आर इन द पोजीशन कि वी कैन राइट द नंबर्स ऑफ दिस जीपी. ठीक है. सो लिख लेते हैं. देयरफॉर व्हेन आर इज प्लस 2 लोगे एंड ए इक्वल्स टू 4 लोगे तो हमारे नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे डियर, चेक इट. पहला हो जाएगा a by r square, तो 4 by 4 which is 1. ठीक है. then we will get 2, then we have 4, then we have 8 and then we have 16. ये हमारे 5 numbers of GP हो जाएंगे. when r equals to minus 2 and a equals to 4 तो numbers क्या क्या हो जाएंगे, numbers are, अब वैल्यू पुट करो. दिस इज अगेन माइनस आर का डालोगे तो 1 by 4 इट इज 1, देन माइनस 2, देन 4, देन माइनस 8 एंड देन 16. ये हमारे 5 नंबर्स ये आ जाएंगे. सो व्हेन आर इक्वल्स टू 2 तो ये आ गया हमारा 5 नंबर. और व्हेन आर इक्वल्स टू माइनस 2, ए तो कांस्टेंट दोनों ही बराबर है, इक्वल्स टू 4. सो बोथ दीज टू आर आंसर्स ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन. ठीक है. चेक कर लीजिए क्वेश्चन क्या था. फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024 एंड फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म. सो वी टुक ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर. दीज आर 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी. करेक्ट. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी प्रोडक्ट क्या दी हुई थी, 1024. हमने इनटू किया इनको. फ्रॉम हियर वी गेट a equals to 4. सेकेंड इंफॉर्मेशन और क्या दी हुई थी कि फिफ्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म का स्क्वायर है. तो फिफ्थ टर्म ए आर स्क्वायर है. दिस इज फिफ्थ टर्म. ठीक है. और मिडिल टर्म क्या है अपने पास, ए है. सो ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. सो आर हमें यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस माइनस 2. आर कन्फर्म, ए कन्फर्म. नाउ यू कैलकुलेट द नंबर्स. सो व्हेन r is 2, a is 4, डाल दीजिए वो ए आर स्क्वायर वाले में. तो ये आ गया 1 2 4 8 16. और जब r माइनस 2 है, a 4 है, तो नंबर्स आर 1 माइनस 2 आर 4 माइनस 8 16. गो थ्रू कर लेंगे आप. ठीक है. फाइन डियर. बेसिक what is important here, you have to remember those consecutive terms, 3 consecutive terms, 4 consecutive terms and 5 consecutive terms. ये याद रखने होंगे आप. then only you will get this type of problems. इस तरह के प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. now I am moving to another question. see question number, it is 9 from the your textbook. Question is given, the fifth term of a GP is x. Eighth term of a GP is y, and 11th term is z. Verify
verify verify whether whether y square equals to xz. ठीक है, what do we have to check? We have to check y square equals to xz, जहाँ पे x क्या है डियर? फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, y is eighth term of a GP, and z is 11th term of a GP. ठीक है, सो हमें चेक करना है y square equals to xz. फाइन, सो विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम. क्या होना चाहिए, स्टार्ट कर ले हम. फिफ्थ टर्म को आप T5 लिख लेंगे. ठीक है, ए और आर उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो है. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio. So T5 is A R to the power 4, which is given x. Correct? Fifth term of a GP is x, so T5 is AR4 is x. Then we have eighth term, so we'll go to T8, which is A into R to the power 7, and this is given y. And finally we have 11th term, T11, which is A into R to the power 10, and this is given z. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो गया टर्म के अकॉर्डिंग. अब हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड प्रूफ करना है, क्या ये सही है या नहीं. तो हम एल एच एस ले लें इसका. एल एच एस इज वाई स्क्वायर मीन्स ए आर to the power 7 square, which is nothing but a square r to the power 14. correct, power to the power multiply. RHS देख लें इसका. RHS we have xz, x is AR4, z is AR10, a into r to the power 10. so ये भी क्या आ गया, a square r to the power 14. therefore LHS equals to RHS. So it is verified. That means whatever the information it is given, the fifth term of a GP is x, eighth term of a GP is y, and 11th term is z, which is correct for this relationship y square equals to xz. So it is verified. ठीक है, कैसे कैसे हुआ चेक कर लीजिए. ए बी द फर्स्ट टर्म, आर बी द कॉमन रेशियो, T5 निकाल लिया आपने, T8, T11, LHS ये वाई स्क्वायर है. करेक्ट, RHS आपने XZ किया, दोनों ही सेम आ गई, this and this same. therefore LHS equals to RHS, and we can say y square equals to XZ holds यानी ये ट्रू है, this is true या holds. fine, so we'll move to our next problem dear. look at this. So the next problem I'm taking, this is from your textbook only, question number 11. It is the number of bacteria, ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ये आने चाहिए आपको, तो यू मस्ट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर यानी कुछ स्पेसिमेन बोलते हैं ना, कुछ सर्टेन कल्चर मीन्स एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज के अंदर सर्टेन कल्चर डबल्स every hour. If there were 50
50 bacteria originally in a culture, how many bacteria will be there at the end of fifth hour. ठीक है, देखो डियर, क्वेश्चन को लिखने में जितना टाइम लगा उसके आधे टाइम में आप इसके सोल्यूशन निकाल लोगे। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। सर्टेन कल्चर मीन्स एक स्पेसिमेन ग्रुप निकाला उस बैक्टीरिया एक सर्टेन थिंग से, तो वो डबल होती है एवरी आवर। इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन अ कल्चर, इनिशियली कितने थे? 50 थे। दैट मीन्स व्हाट यू कैन से, ए इज गोइंग टू बी, ए में यहाँ ओरिजिनली क्या लिख दूँ, ए इक्वल्स टू 50 लिख सकता हूँ। 50 बैक्टीरिया थी। इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन अ कल्चर, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर। यहाँ पे डबल भी हो रहा है, सर्टेन कल्चर में जो बैक्टीरिया क्या हो रही है, डबल्स एवरी आवर। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, 2, बिकॉज ये डबल होता है हर एक घंटे पे। सो कॉमन रेशियो इज 2। अब हमें चाहिए हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर। तो हमें एंड ऑफ फिफ्थ आवर की सेंस यहाँ पे क्या होगी, एंड ऑफ फिफ्थ आवर वी हैव टू फाइंड व्हाट, T6। एंड ऑफ फिफ्थ आवर का मतलब ये हुआ फर्स्ट आवर ऑलरेडी T1, T2, T3, T4, T5, करेक्ट। T5 नहीं हो सकता, T5 यानी फिफ्थ आवर स्टार्ट हो रहा है। सो T6 इज गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर, ठीक है ना। सो T6 वी हैव टू कैलकुलेट। सो A इंटू R टू द पावर 5 हो गई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 6 - 1। ये हमारा 50 है एंड R इज योर 2, सो 2 टू द पावर 5, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर 5। अब आप चाहें तो इसको इंटू कर लें। सो दिस इज गोइंग टू बी 50 इंटू 32 एंड विच इज नथिंग बट 1600। ये नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हो गए। लुक एट दिस सोल्यूशन पार्ट इज हाउ सिंपल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये भी समझना है कि एंड ऑफ द फिफ्थ आवर, इसका मतलब T5 नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें T6 कैलकुलेट करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर वी हैव टू फाइंड T6 हियर, T5 नहीं। इसमें कई बच्चों कंफ्यूज करते हैं, कई बच्चे इसको T5 निकाल देते हैं, तो आंसर विल बी डिफरेंट। सो एंड ऑफ द फिफ्थ आवर मीन्स T6 वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना। दैट यू हैव टू टेक केयर हियर इन सच टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, करेक्ट। सो नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लुक एट दिस डियर, आई बिलीव दिस इज सिंपल वन। ओरिजिनली कितनी थी, 50 बैक्टीरिया थी, और ये हर घंटे डबल हो रही है, यानी कॉमन रेशियो या आर जो कह रहे हैं वो 2 हो रहा है, ठीक है ना, डबल हो रहा है रेशियो। एंड एंड ऑफ द फिफ्थ आवर मीन्स T6 वी हैव टू कैलकुलेट। फाइनली आंसर केम 1600। See the next problem, this is from your textbook only. The numbers 3x and x plus 6 are in GP, ये कहाँ पे है, GP में है। 3x and x plus 6 फाइंड, इसमें सब क्वेश्चन है। पहला है x निकालिए, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर है 20th टर्म, जब x आ गया तो 20th टर्म निकालिए, एंड थर्ड क्वेश्चन इट इज nth टर्म, करेक्ट। फाइन डियर। सो इस चैप्टर के अंदर दिस सम आई एम टेकिंग द लास्ट प्रॉब्लम, करेक्ट।
सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू ट्राई योर सेल्फ, आपसे बन जाएंगे. एक दो सम ही रह गया है जो आप खुद से कर लेंगे. सो लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस सम. How we'll proceed. So first of all that you have to think what are the information it is given. दे रखा है numbers 3x and x plus 6 are in GP. तो जब GP होता है तो second term upon first is equal to third upon second term. यही करते हैं आप whenever terms are in GP, numbers are in GP. So from here we'll simplify. This is going to be x square. This is 3x plus 18. यहाँ से हमने x कैलकुलेट कर लेना है डियर. ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास. Look at this, the value of x equals to 6 and minus 3. ये दो आ गए x की वैल्यू. तो x की वैल्यू कंफर्म. नाउ अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 20th टर्म. सो 20th टर्म निकालने के लिए सेकंड क्वेश्चन में x तो कंफर्म हो गया. तो व्हेन x इक्वल्स टू 6 लेंगे, x इक्वल्स टू 6. ठीक है, सो हमारे जीपी क्या बन जाएगी. तो हमने पहले जीपी को देखना है डियर. x 6 लिया तो जीपी हमारे पास क्या क्या आ गया 3 6 9. ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 6. सो 3 6 9 से अपने पास a क्या मिल गया. दिस इज जीपी नाउ. 3 6 9 a है 3, करेक्ट. एंड व्हाट इज r. r हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड. So r is going to be 2. See, a is first term, second term and third term is 9. Na? So yes, so then it will be r is going to be 2 because check it, यहाँ पे x plus 6 है तो x हमारा 6 plus 6 12 हो गया. यहाँ पे वेट नंबर में 12 है. This is 12. So r is 2. So we can calculate. What we have to calculate? 20th term. So T20 आप निकाल लेंगे, which is a into r to the power 19. a हमारे पास 3 है. ठीक है, r 2 है. 2 पे 90. ऐसे ही छोड़ दीजिए, डोंट मल्टीप्लाई. आंसर भी ऐसे ही छोड़ा हुआ रहता है. करेक्ट. फिर इसी में आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं. when x इक्वल्स टू -3. ठीक है, तो आपके जीपी पहले देख लो क्या बन गए. 3 -3. जीपी आ गया 3 -3 एंड दूसरा क्या आ जाएगा 3 -3. थर्ड इज कितने दिए हुए 6 -3 दैट इज +3. ये जीपी में है. इसके कॉमन ए क्या है. ए इज फर्स्ट टर्म विच इज 3. कॉमन रेशियो क्या आ गया -1. ठीक है, दिस इज 3. सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसके भी T20 चाहिए. 20th टर्म. सो a इंटू आर टू दी पावर 90. a 3 है -1 टू दी पावर 19 जो अपने को ऑड देगा तो ये -3 हो गया. ठीक है, सो सेकेंड पार्ट इज कंफर्म बिकॉज वी हैव फाउंड x इक्वल्स टू दो वैल्यूज 6 एंड -3. तो हमें व्हेन x इक्वल्स टू 6 करेक्ट, तब हमें ये बताना था T20. सो दिस केम व्हेन x इक्वल्स टू -3 देन वी हैव T20 इज -3. लास्ट पार्ट ऑफ द सम क्या है, Tn चाहिए. ठीक है, nth टर्म. तो वो भी हमारे दो हो जाएंगे बिकॉज x हमारे दो वैल्यूज हैं. ठीक है, तो Tn भी आप दो कर लेंगे. Tn में हमारे क्या आएगा, a हमारा फर्स्ट टर्म पहले वाले x इक्वल्स टू 6 के लिए व्हेन x इक्वल्स टू 6. तो a हमारा 3 था. 3 दिस इज 3 इंटू r क्या था 2 टू द पावर n -1. ये Tn हो गया. और व्हेन x इक्वल्स टू -3.
ठीक है, तो इस केस में आर क्या हुई थी, -1, तो यहाँ से भी टी एन क्या आ जाएगा, ए विच इज़ -3, एक्स के -3 है तो ए हमारा क्या आया था 3, सो ए इज 3 इंटू आर टू द पावर n-1। आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, या आप -1 टू द पावर n-1 कर रहे हैं, या आप ऐसे ही छोड़ दिए 3 इंटू -1 टू द पावर n, इसको वी नीड नॉट हैव टू कैलकुलेट फर्दर, ठीक है। सो 3 इंटू -1 to the power n-1, this is the answer, correct dear। so step by step देखो, क्लियर हो जाएगी आपको। the numbers 3x and x plus 6 are in GP, find x 20th term and nth term। तो first we have calculated the x, the values of x came 6 and -3, फिर हमने t20 निकाला when x equals to 6, so t20 हमने कैलकुलेट किया, when x equals to -3 t20 we have, जब x इक्वल्स टू 6 था तो हमने टी एन भी कैलकुलेट कर दिया, एंड व्हेन x इक्वल्स टू -3, सो ए हियर 3, ए हमारा क्या मिला था 3, ठीक है। सो ए इंटू आर टू द पावर n-1, टी एन भी हमारा ये कैलकुलेट हो गया, दिस वन 3 इंटू -1 टू द पावर n-1, क्लियर। सो दिस वे वी कैन गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, फाइंड हियर। सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस बेसिक क्वेश्चंस जो जीपी के इस एक्सरसाइज में हमने किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब आप एक बार गो थ्रू कीजिए, एंड टेक्स्ट बुक में भी कुछ सम्स दिए हुए हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू, करेक्ट। नाउ आई एम टेकिंग गिविंग यू द होमवर्क देयर इस चैप्टर पे बेस्ड, इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 2.2। सो बेस्ड ऑन 2.1 आई एम गिविंग यू सम होमवर्क जो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, look at this, question number 1 is find four numbers in GP such that the product of the first and last is 108, and the sum of the middle two is 8, correct। this is the question there। अपने को वो नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसके आंसर्स को भी लिख देता हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन मैच द आंसर। फाइंड 4 numbers in GP such that the product of first and last is 108 and the sum of the middle two is 8। क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करिए और देन यू कैन एबल टू सॉल्व दिस। सो मैं नंबर्स आंसर लिख दे रहा हूँ, 2, 6, 18, 54, और रिवर्स कर दीजिए इसको, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही आपके आंसर आते हैं, 54, 18, 6 and 2। so this is the answer। we'll go to the next problem there। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 numbers in GP such that their product is 1 and the sum of
sum of the middle three, sum of middle three is 13/3. ठीक है, तो इसके आंसर भी लिख दे रहा हूं मैं. आंसर इज, question clear, find 5 numbers in GP such that their product is 1 and the sum of the middle 3 is 13/3. middle 3 terms, middle के जो 3 टर्म है उनका सम 13/3 है. आंसर देखो डियर, इसका आंसर all of will be going to get is 1/9, 1/3, 1, 3, 9, and, or you can say, or 9, 3, 1, 1/3 and 1/9. Correct? Find here. So these two sums. One more sum I am going to give you right now only. Third sum is, आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल लें डियर, ये दोनों सम का. ठीक है. Meanwhile I am just giving you the third question. Look at the third question. Third question is the numbers x minus 6, 2x and x square are in GP. Find, first part is x, second is first term, and third is nth term. Correct? So I am going to write the answer also. आंसर लिख दे रहा हूँ मैं. x की वैल्यू 10 आ रही है. फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 4 आ रहा है. एंड थर्ड इज nth टर्म जो आ रहा है डियर, वो आ रहा है nth टर्म इक्वल्स टू 4 into 5 to the power n minus 1. ठीक है. So these are the 4 questions answers. ठीक है. x10 फर्स्ट का, सेकंड आपका a है which is 4, nth टर्म क्या आया 4, 5 n minus 4 into 5 to the power n minus 1. ठीक है. So these 3 answers for question number 3 and first, second. So all these 3 sums all of you have to solve. Find here. निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट. So now we will discuss the next article in second video. Correct? Second video में हम सीरीज सम ऑफ जीपी सीखेंगे. जीपी का एसएन निकालना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी डियर. सो मीनवाइल ये कुछ प्रॉब्लम्स को आप गो थ्रू कीजिए और ये होमवर्क भी आप करेंगे. ठीक है. और अच्छे से प्रॉब्लम को समझिए. डाउट हो तो यू कैन आस्क. ठीक है. आप पोस्ट कर दीजिए डाउट कि सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस स्टेप, दिस वन. Clear? So the next we'll discuss in sum of n terms of a GP. Find here.